Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Yes students, today we will start the first chapter of biology, that is Introduction to Biology. Key points of this chapter are Introduction of Biology, branches of biology, role of Muslim scientists and levels of organizations. Biology. What is biology? It is a scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. बायोलॉजी क्लास साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की. बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, लिविंग थिंग्स की स्टडी है हमारे सराउंडिंग में. ठीक है. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. There are three main types of biology: zoology, botany and microbiology. Zoology is the study of animals, botany is the study of plants, and microbiology is the study of microorganisms like bacteria. Muslim scientists. Muslim scientists have made great contribution to the study of science, and we are aware of their success in different fields of science. Here we will summarize the work of Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asma'i and Abu Ali Sina in the development of present-day knowledge of plants and animals. Jabir bin Hayyan, he was born in Iran and practiced medicine in Iraq. He wrote a number of books on plants and animals. His famous books are Al-Nabatat and Al-Haywan. जाबिर बिन हयान जो थे वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे और उनकी जो फेमस बुक्स थी क्लास, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बुक्स राइट की थी. उनकी फेमस बुक्स थी अल-नबातात और अल-हैवान. अब्दुल मलिक अस्माई, ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट who considered the first Muslim scientist who studied the animals in detail. His famous writings include Al-Khel horse and Al-Wahush animals. उन्होंने दो बुक्स राइट की थी, Al-Khel and Al-Wahush. Abu Ali Sina, he is honored as the founder of medicine. He was physician, philosopher, astronomer and poet. His famous books are Al-Qanun fi al-Tib. Next topic is about levels of organization. In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different levels, which are as follows. First level is subatomic and atomic level, molecular level, organelle and cell level, tissue level, organ and organ system level, individual level, population level, community and biosphere level. First level is subatomic and atomic level. All matter is made up of elements. Elements are also contain single kind of atom. Most stable particles are electron, proton and neutron. जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है तमाम का तमाम मैटर एलिमेंट से मिलके बना होता है क्लास, और तमाम एलिमेंट्स सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं. और सबसे स्टेबल पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. उसके अलावा क्लास बायो एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो 92 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 16 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मॉलिक्यूलर लेवल, बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग. द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. कभी भी बायो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे जो हैं सेपरेट वो काम नहीं कर सकते, उनको वो बॉन्डेड होते हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू. ठीक है. और ये स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल का या फिर बायोमॉलिक्यूल का नेम देते हैं. मॉलिक्यूल की टू टाइप्स बताई गई हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल. माइक्रोमॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है उसे हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स का नेम देते हैं, लाइक ग्लूकोज एंड वाटर. मैक्रोमॉलिक्यूल्स, सम मॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्च एंड प्रोटीन्स. थर्ड लेवल इज ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. बायोमॉलिक्यूल assemble in a particular way and form organelles like mitochondria and ribosomes. बायोमॉलिक्यूल्स क्लास इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस.
Cell organelles are subcellular structure. When they assemble together, unit of life, cells are formed. सेल्स किस तरह से बनते हैं? जब तमाम ऑर्गेनेल्स इकट्ठी होती हैं और वो क्या बनाती हैं? एक सेल। तमाम ऑर्गेनेल्स सेल के इनसाइड प्रेजेंट होती हैं और सेल जो है वो हमारी लाइफ का फंडामेंटल बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ऐसे सेल्स का ग्रुप जो स्पेसिफिक या कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यू का नेम देते हैं। टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं टिश्यूज़ की, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट टिश्यू की अगर बात की जाए तो क्लास प्लांट टिश्यू में डिफरेंट टिश्यूज़ आ जाते हैं लाइक एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। और अगर एनिमल टिश्यूज़ की बात की जाए तो एनिमल टिश्यूज़ में मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं। Next level is organ and organ system level. Organ in higher multicellular organisms, more than one type of tissues having related functions are organized together and make a unit cell called organ. एक से ज़्यादा टिश्यूज इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं लाइक स्टमक। स्टमक इज अ ऑर्गन। स्टमक इज स्पेशलाइज फॉर डाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम like digestive system, nervous system, circulatory system, and these systems are responsible to perform specific functions. Next level is about individual level. Different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism. एक organism जो है क्लास या एक individual जो है वो different organs या organ system का मजमूआ होता है। वो organ ये ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। पॉपुलेशन लेवल, अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। सेम स्पीशीज, सेम मेंबर्स का, ऐसे स्पीशीज का जो आपस में फर्टाइल कर सकते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स उन्हें स्पीशीज का नेम दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज जो सेम स्पीशीज होती हैं उनका ग्रुप सेम प्लेस पे और सेम टाइम पे क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। लाइक क्लास ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, कि एक क्लास के अंदर जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे मौजूद है। कम्युनिटी लेवल, अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठे होकर कम्युनिटी बनाती हैं। लाइक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में अगर आप देखें क्लास तो उसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट जो है पॉपुलेशंस, डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम कम्युनिटी का नेम देते हैं। Biosphere level, the part of Earth inhabited by organisms, communities is known as biosphere. It consists of all ecosystems. Biosphere level में क्लास तमाम communities, तमाम ecosystems आ जाते हैं, ठीक है। This was all about today's lecture. Okay class, stay home and stay happy. Thank you.